ہم مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ہم اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ جوڑیں اور قرآن پاک کو اچھے طریقے سے سمجھ کے پڑھیں. یہ رمضان کا مہینہ سب سے بیسٹ اپرچونٹی ہے، اور اس مہینے میں اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں، تھوڑی کریں، ایک صفحہ کر لیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ بہت سارے دروازے کھولیں گے. جتنی استطاعت ہے اتنا پڑھیں، تو اللہ سے رشتہ جب قائم ہو جائے گا، اللہ کی ذات میں توکل پیدا ہو جائے گا، تو اطمینان قلب بھی آ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو راتیں دی ہیں نا، اس اٹ شوڈ بی یو، اللہ اینڈ یور ٹیئرس. یعنی یہ آپ اور آپ کے رب کے درمیان کوئی جو ہے نا حائل نہ ہو، اور بس آپ آنسوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے بس ہاتھ آپ کے کھلے ہیں، اور عاجزی کے ساتھ. یہ میں تو کبھی کبھی بھی فیل کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں واللہ کہ یا اللہ آپ اتنے عظیم ہیں، وی ڈونٹ ایون نو ہاؤ ٹو کال اپون یو. یار میں کہتا ہوں کہ میں جاہل ہوں، یا اللہ آپ ہمیں بس بخش دیں. دیٹ از آل آئی کین سے. اور یا اللہ باقی جتنی بھی زندگی ہے نا، آپ یہاں تک لے کے آگے بھی آپ جو ہے نا میرا بیڑا پار کر دیں. اگر آپ نے چھوڑ دیا نا، یہ مال ہے، یہ ہے، گھر والے ہیں، بیوی بچے ہیں، پیرنٹس ہیں، کوئی کام نہیں آنا. اف یو آر بائی مائی سائڈ، اف یو آر ایٹ مائی بیک، آئی ایم آل گڈ. آپ رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد ایک جیسے انسان نہیں ہونے کوئی چاہیے. گول سیٹ کریں کہ آئی ہیو ٹو، ایون ابن قیم کہتے ہیں نا کہ پورا قرآن کور ٹو کور پڑھنا، اور ایک آیت کو سمجھ کے اس کا مفہوم تفسیر اس پہ عمل کرنا. This is far better than that one. So make sure that your Ramzan is transformational and not a usual Ramzan کہ جس کے بعد آپ سیم جو ہے وہ لائن پہ چل رہے ہوں. ایک شخص آیا اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور پوچھتا کیا ہے کہ اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے وصیت کی. تو اللہ کے نبی نے وصیت کی، اوصیک ان تستحی من اللہ کما تستحی من الرجل الصالح. میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ تو اللہ سے ایسی حیا کرے جیسے تو ایمان والوں سے حیا کرتا ہے، جیسے تو کسی ایمان والے سے حیا کرتا ہے. اب اس کو ایسے سمجھیں کہ دے آر اسموکنگ، اور وہاں سے شیخ یا کوئی بزرگ آ جاتا ہے، رائٹ، اینڈ ہی از اے پائس پرسن. تو ہو سکتا ہے دور سے ہی آپ اس شخص کو دیکھ کے کیا کریں گے، اپنے سگریٹ کو جو ہے نا سائڈ پہ کر کے ایٹ لیسٹ جو ہے اس کو ذرا ختم کرنے کی کوشش کریں گے. تو یعنی آپ کو حیا آتی ہے. تو اللہ کے نبی نے یہاں پہ کیا انسٹرکشن دی ہے کہ جیسے تم نیک لوگوں سے حیا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ زیادہ مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کی جانی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اور اللہ تعالیٰ نا ایک حدیث میں بڑے پیارے انداز میں اپنے بندے کو ایڈریس کرتے ہیں، بلکہ تمام انسانوں کو ایڈریس کرتے ہیں. فرماتے ہیں یا ابن آدم، کیا پیارا انداز ہے کہ اے آدم کی اولاد، اے میرے بندے، اے محمد، اے عبداللہ، اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت کل شیء وإن فتک فاتک کل شیء. اے آدم کی اولاد، اے میرے بندے، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کر تو مجھے پا لے گا. I'm very near to you، میں تیرے بڑا قریب ہوں. فإن وجدتنی وجدت کل شیء، اگر تو نے مجھے پا لیا سمجھ تو نے سب کچھ پا لیا. اور اگر میں فوت ہو گیا ان سینس تیری میموری میں، یعنی اگر تو نے مجھے، if you miss me you missed every single thing، تجھے کچھ بھی نہیں ملا. اللہ سے مانگو، جس طرح رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا یوسف علیہ السلام کے بارے میں. اگر یوسف علیہ السلام اللہ سے یہ فرماتے کہ اللہ مجھے ان عورتوں کے فتنے سے بچا اور جیل سے بھی بچا، لیکن کیا کہ الفاظ ان کے منہ سے نکل گئے حضرت یوسف علیہ السلام، یا اللہ میں جیل کو ان عورتوں کے فتنے پر ترجیح دیتا ہوں. اللہ نے ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، سبق کیا دے رہے ہیں، جب اللہ سے مانگو تو سوچ سمجھ کے مانگو. وہ بہت بڑی ذات ہے، اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے. تو جب اللہ سے مانگو تو اللہ کے مقام کے مطابق مانگو. اس طرح مانگو کہ تمہارا یہ پختہ یقین ہو کہ مجھے اللہ دے گا، عطا کرے گا. تو اللہ سے اس دنیا میں بھی کامیابی مانگو، سکون مانگو، خوشحالی مانگو، اور آخرت میں بھی خوشحالی اور سکون مانگو، اور وہ اللہ آپ کو عطا کریں گے. آپ نے درجن لوگوں کا دل توڑا ہے، اور آپ کا خیال ہے میں کثرت سے درود شریف پڑھوں گا تو معاف ہو جائے گا. کثرت سے درود پاک پڑھنے کا ثواب تو ملے گا، طبیعت میں مٹھاس بھی آئے گی، حضور راضی بھی ہوں گے، پر وہ جو اس کا دل توڑا ہے اسے معافی بہرحال مانگنی پڑے گی، اس کی دل جوئی بہرحال کرنی پڑے گی. کسی کا دل نہ توڑے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. آپ کی وجہ سے کوئی رات کو سوئے اور روتے روتے آنکھ لگ جائے،
वो जबान से लफ्ज ना भी निकाले, उसके निकलने वाले आंसू आपकी जिंदगी को बर्बाद कर गए। खुदारा किसी का दिल न तोड़। मेरे हजरत कलीमुल्लाह ने पूछा था रब से, या अल्लाह तू कहां मिलेगा? आगे से जवाब आया, मैं टूटे हुए दिलों में मिलूंगा। कुरान पाक की एक आयत है जिसका उसका मफहूम है कि तुम वो वादा याद रखना जो तुमने मुझसे किया था, मैं वो वादा याद रखूंगा जो मैंने तुमसे किया था। यानी कि अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि तुम वो वादा याद रखना जो तुमने मुझसे किया था, मैं वो वादा याद रखूंगा जो मैंने तुमसे किया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कोई शक नहीं। तो बस वो वादा आज ही कर ले, समझ आ जाएगी बात। तो शैतान ने अगर किसी मुसलमान को काफिर बनाना हो तो उसके पास एक ये ऑप्शन है कि वो उसे ये कहेगा कि तुम अल्लाह ताला का दीन छोड़ दो और कुफर कर दो, इनकार कर दो, तो तुम काफिर बन जाओगे। एक ये तरीका है जो कि एक बुरे से बुरा, फासिक से फासिक मुसलमान भी जो है ना, कभी भी नहीं मानेगा बात। दूसरा तरीका है ईमान निकालने का, पता है क्या है? उस बंदे को बेहया कर दो। एज सिंपल एज दैट। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि जो हया और ईमान है ये एक ही शाख के दो। अल-हया वल ईमान कुरिना जमीआ इज़ा रुफ़िअ अहदुहुमा रुफ़िअ अल-आखिर। एक चली जाती है तो दूसरी खुद ब खुद चली जाती है। मतलब ये आपके ईमान से जुड़ी हुई है। सहाबी थे, वाकया है सही बुखारी में, नबी वसल्लम के साथ हज पे वो थे और नबी वसल्लम के साथ कैमल पर बैठे हुए थे। खूबसूरत सहाबी थे, इंतहाई हैंडसम सहाबी थे। एक खातून आई नबी वसल्लम से आकर, यंग खातून, उन्होंने कुछ सवाल पूछा। खातून भी बहुत खूबसूरत थी और आपको पता है हज के मौके पे बिल्कुल कवर नहीं होता, जाहिर है वो नहीं। तो सहाबी वाज लुकिंग एट हर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोट कर लिया। अल्लाह के नबी ने उनका चेहरा पकड़ा और यूं मोड़ दिया। ये क्यों किया? साफ जाहिर है, नजर आ रहा है कि ये एक फैक्ट है कि बंदा जब देखेगा और अट्रैक्ट होगा। ये अल्लाह ने हमारी नेचर में डाला है और ये एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्रीज को पता है क्यों वो औरत को लेकर भाई। आप देखो अंडरवियर मेल है जी, इश्तिहार लड़की बना रही है मतलब वो इसीलिए है ना जी, उसको पता है कि जी हमने, अच्छा फिर वो स्प्रे, आप बॉडी स्प्रे है, सुंघा लड़की को रहे हैं, उनको पता है, दे नो दैट। बिल्कुल, इवन जिलेट का इश्तिहार, उसमें लड़की खड़ी की हुई है। नमाज इस लेवल की फर्ज है कि हर इबादत किसी रीजन की वजह से छोड़ी जा सकती है। रोजा छोड़ा जा सकता है, सफर पे बीमार है छोड़ा जा सकता है, हज नहीं इस्तिताअत ना करो, ज़कात नहीं इस्तिताअत ना करो, नमाज फॉलेज भी हुआ है आपने लेट कर पढ़नी, आपने आंखों से पढ़नी, आप सजदा नहीं कर सकते, खुदा ना खास्ता फॉलेज हुआ है आपने आंखों के इशारे से पढ़नी। नमाज कैन नेवर 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 बी लेफ्ट। और नमाज जो कॉन्स्टेंटली तरक कर देता है, अइम्मा इकराम का इसमें इजमा है एक किस्म का कि वो बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। इस लेवल का सख्त फतवा है कि जिसने बहुत देर से नमाज तर्क की हुई है उसका नमाज जनाजा नहीं जाएगा। और ये मिसालें मिलती हैं, सहाबा नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे उस शख्स को, पहले पूछा जाता था ये नमाज पढ़ता था कि नहीं पढ़ता। आज अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अनाउंस कर दे कि कल से जो बंदा फजर की नमाज पढ़ेगा मस्जिद में जाके, फी बंदा हम 5,000 रुपए देंगे, व्हाट वुड बी द आउटकम? मस्जिदें भर जाएंगी, गवर्नमेंट गरीब हो जाएगी, यानी मस्जिदें कम पड़ जाएंगी, राइट? यानी वो कौम पैसे के पीछे वो नमाज पढ़ेगी, जो मर्जी कर देगी, यानी जो भी आप उसको हुक्म दें। When दज्जाल comes, वही बात आती है, वो उनको बोलेगा खड़े हो जाओ, वो खड़े हो जाएंगे, बैठना है तो वो बैठ जाएंगे। तो हमारा अभी फिलहाल जो हम जिस जगह पे खड़े हैं ना वो इधर खड़े हैं। और हमारे नबी ने हमें वार्न किया था ज़ियाबी, उन्होंने कहा था कि जब दज्जाल अपीयर होगा, अगर तब तक तुमने अपने ईमान के ऊपर काम नहीं किया होगा तो फिर तुम्हारा ईमान तुम्हें कोई फायदा नहीं देगा। मीनिंग अगर बंदा तब कहे ना, ए अल्लाह दज्जाल आ गया, प्लीज मेरा ईमान बढ़ा दे, या मैं अब नमाज पढ़ूंगा, अब मैं नेक बन जाऊंगा, तब कोई फायदा नहीं है, द टाइम इज गॉन। तो इससे यानी इन सारी चीजों से पता ही चलता है कि आज उम्मत मुस्लिमा एज अ होल कहां पे खड़ी है। हम पैसे के पीछे सब कुछ बेचने के लिए तैयार हैं। अगर हम इस कुरान को पहाड़ के ऊपर नाजिल करते हैं तो वो रेजा रेजा हो जाता है। किस चीज से? अल्लाह का खौफ है कि वो रेजा रेजा हो जाता है। और ये जो हमारे दिल के अंदर, जो हमारे जो इस जिस्म के अंदर, सीने के अंदर जो दिल है, उसको कभी निकाल के देखें तो कितनी सॉफ्ट सी वो चीज है, छोटी सी चीज है। पूरा पूरा कुरान पढ़ दिया जा रहा है और वो हिल भी नहीं रहा अपनी जगह से, कोई असर ही नहीं आ रहा उसके ऊपर। क्या वजह है इस दिल की इतनी सख्ती की? कितना बड़ा इनाम अल्लाह ताला ने हमें दिया है अपने नबी के जरिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो नबी जिस तकलीफों के साथ जो है वो कुरान को लेकर आए हैं दुनिया में, और हम तक, आप तक और मुझ तक पहुंचाया है उन्होंने।
उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सब और मैं सब में हम सब जो है वो चाहते हैं कि वो क़यामत के दिन हमारी सिफारिश करें, सब चाहते हैं ना, हमारी शफाअत करें। लेकिन सूरह सजदा के अल्फाज क्या हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से शिकायत करेंगे क़यामत के दिन कि मेरी कौम ने कुरान को छोड़े रखा था, मेरी कौम ने कुरान को छोड़े रखा था। तो आप सब बताएं मुझे कि जो अल्लाह से आपकी शिकायत कर रहे हैं कुरान को छोड़ने के ऊपर, चांसेस हैं कि हमारी शिफात हो जाएगी? उनकी रहमत है, उनकी उम्मत से मोहब्बत है, वो तो एक अलग चीज़ है, उनकी तो शान है, लेकिन क्या हमें वो शर्म हया है कि हमारे घरों में कुरान मौजूद है और उसके बावजूद भी हम उसको अहमियत नहीं देते? अगर लोग सिर्फ इस एक सूरत पर तदब्बुर करें, गौर करें, सोचें, फिक्र करें, तो ये उनकी हिदायत के लिए काफी हो जाए। आसिर की कसम कि इंसान नुकसान में है, मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और आपस में हक पर चलने की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहे। जब भी कोई परेशानी आए आप ये माने कि ए अल्लाह तू एक है, ला इलाहा इल्ला अंत। ए अल्लाह तू एक है, तेरा कोई शरीक नहीं है। मैं अगर हाथ उठाऊंगा कुछ मुझे चाहिए, मैं सिर्फ तेरे सामने गिड़गिड़ाऊंगा, तेरे अलावा कोई नहीं मुझे अता कर सकता, कोई परेशानी दूर नहीं कर सकता, कोई मुझे नेमत नहीं दे सकता। नहीं, सब झूठ है, सब बोगस है। कोई पीर नहीं देगा, कोई वली नहीं देगा, कोई बुजुर्ग नहीं दे सकता। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैत वला मुअतिय लिमा मनाअत। ऐ अल्लाह, जो आप अता करना चाहें फिर उसको कोई रोकने वाला नहीं है, और जिस चीज से आप मना कर दें फिर कौन है जो वो अता करे। ऐ अल्लाह, आप अकेले हैं, आप ही इबादत के लायक हैं। कुरान मजीद सिर्फ नेकियां इकट्ठे करने की किताब नहीं है। कुरान मजीद ऐसी किताब नहीं है कि जब किसी की बेटी की शादी हो, किसी की बहन की शादी हो, तो दुल्हन के ऊपर ऐसे कुरान मजीद रख दिया जाए। कुरान मजीद इसलिए नहीं आया। कुरान मजीद इसलिए नहीं आया कि जब तुम में से कोई इस दुनिया से चला जाए, तुम्हारा चाहने वाला चला जाए, तो उसकी कब्र के पास बैठ के तुम सूरह यासीन पढ़ो। दीन ऑथेंटिसिटी का नाम है। यू कैनॉट ऐड एनीथिंग इन द दीन एंड यू कैनॉट डिलीट फ्रॉम द दीन। दीन हमारा मुहकम है। तो कुरान का मकसद क्या है? सो दैट यू कैन पॉन्डर ओवर द कुरान। हम घर से जब भी निकलते हैं हमें अल्लाह की एक दुआ सिखाई, और क्या दुआ है? बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह की ने फरमाया कि जो शख्स ये दुआ पढ़ लेते घर से निकलते वक्त, उसका करीन यानी इसका शैतान उससे कहता है कि मैं कैसे इस बंदे को गुमराह करूं जिसको हिदायत मिल गई, जिसको आफियत मिल गई, और जिसको जो गाइडेंस अल्लाह की तरफ से, मैं इसको कैसे गुमराह करूंगा। और वो कुछ उलमा इसकी शरह में लिखते हैं कि वो उसका जो करीन है वो भी दूर हो जाता है कि नाउ आई कैन नॉट डिस्ट्रॉय दिस पर्सन, इसको मैं गुमराह नहीं कर सकता।